Welcome back to our 11th class chapter, Transport in Plants. A very good morning to you all. As you all know that we have covered osmosis, diffusion, active transport. We talked about the Thistle funnel experiment and some other lab experiments related to osmometer and plasmolysis. We did an experiment on Royo discolor and we studied the phenomena of plasmolysis in our last two classes. We also solved previous year questions and concepts in our classes. And today I am going to deal with two another important topics that are imbibition and transpiration, where we'll be talking about the concepts, details, and important features of imbibition and transpiration. It will be really helpful to you all who would be preparing for entrance exams, be they ICAR exams or BSc Agricultural entrance exams, and those who are pursuing their subjective classes from 9 to 12th, as well as for other entrance exams including NEET. You must know the difference between imbibition and transpiration, the main concept of imbibition, how does it help in plants, where do we observe imbibition in our everyday life. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, please could you be a little bit louder? Okay. It was a doubt that my pitch should be louder. Fine. We will be discussing about imbibition, transpiration, concepts and details, and important features of imbibition and transpiration. So, as I already talked, that we will be discussing our day-to-day phenomena. How does imbibition helps? आपने कभी देखा होगा कि जब आप सीड्स को सॉक करते हैं पानी में, जब सीड्स को भिगो देते हैं पानी में, तो उनमें एक फुलावट महसूस होती है, फूल जाते हैं बहुत ज्यादा. उसके अलावा यू वुड हैव सीन कि एथेनॉल में या ईथर में अगर सीड्स को डाल दिया जाए, लैब एक्सपेरिमेंट्स अगर आपने किए हैं तो वहां से यू विल गेट टू नो, वहां पे भी सीड्स में फुलावट आ जाती है. अदर देन दैट, बारिश के मौसम में लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं, उनकी लकड़ी फूल जाती है. ये सब फीचर्स किससे रिलेट करते हैं? वी विल डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स इन आवर टुडेज क्लास. Moving on to the revision that we did in last classes, just taking a glance of what we all did. We did Thistle funnel experiment, which was with respect to osmosis, where we discussed about the movement of water during osmosis. And we also discussed about plant cell plasmolysis, where in this figure you have been shown plasmolysed flaccid and turgid cell, where in plasmolysed cell, the cytoplasm shrinks away from the cell wall and the water moves out. In case of flaccid cell, you have the both way movement of water, mean to say it is almost at equilibrium. Then you have a turgid cell where water is moving inside the cell. Now, imbibition. This is our today's topic. Now, what is imbibition? The process of absorption of water by hydrophilic solid particles of a substance without forming a solution is called imbibition. What is known as imbibition? हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं किसी सब्सटेंस के, उनकी जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है वाटर के द्वारा बिना कोई सॉल्यूशन बनाए, उसको बोलते हैं imbibition. Please keep a note of it that it will not form a solution. हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल्स घुल रहे हैं, किसमें घुल रहे हैं? दे आर एडेड टू द वाटर. वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है किसको? हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल्स को. फिलिक का मतलब क्या है? फोबिक मतलब हेट, फिलिक मतलब
love, and hydro means water. So what are the hydrophilic substances? They are water loving solid particles. What are hydrophilic substances? They are water loving solid particles. तो ऐसे वाटर लविंग सॉलिड पार्टिकल्स को जब वाटर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बिना कोई सॉल्यूशन बनाए, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं बनता, लेकिन उन हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल्स को वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्बिबिशन. It is a special type of diffusion as water moves along its concentration gradient. ये एक स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन का, क्योंकि यहाँ पे भी जो वाटर है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि हायर टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन रीजन मूव कर रहा है. Therefore, the water absorbed by solid substances और colloids, ये जो हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल्स हैं इनके लिए और क्या नाम दिया जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज colloids. What are these hydrophilic solid particles? They are known as colloids. ये जो colloids हैं या सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जिन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, दे रिजल्ट इन एनॉर्मस इंक्रीज इन देयर वॉल्यूम. तो क्या होता है? जो सॉलिड सब्सटेंसेस या कोलॉइड्स आपके पास प्रेजेंट हैं उनके द्वारा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है. किसकी वॉल्यूम में? कोलॉइड्स की वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाता है. Now, such solid substances which take part in imbibition are called imbibents. ये सॉलिड सब्सटेंसेस जिनकी हमने बात की, जिनको हमने कोलॉइड बोला, जिनको हमने हाइड्रोफिलिक सॉलिड पार्टिकल बोला, इनको इम्बिबेंट्स कहा जाता है. इम्बिबेंट्स यानी कि जो एब्जॉर्ब करेंगे, जो पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेंगे, जिनका काम एब्जॉर्प्शन करना है ना कि एब्जॉर्ब होना, उनको बोला जाएगा इम्बिबेंट्स. फॉर एग्जाम्पल सीड्स, ड्राई वुड. ओके, लकड़ी का मैंने एग्जाम्पल दिया था, सीड का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था. सो दे आर इम्बिबेंट्स यानी कि पानी को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिनका काम किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है ना कि खुद एब्जॉर्ब होना, उनको बोला जाता है इम्बिबेंट्स. The liquid, usually water, which is imbibed is known as imbibate. जो लिक्विड है जिसको यूजुअली एब्जॉर्ब किया जाता है उसको बोलते हैं इम्बिबेट. ओके, लिक्विड क्या है? पानी है. पानी को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज इम्बिबेट. व्हाट इज वाटर नोन एज? इट इज नोन एज इम्बिबेट. यूजुअली वाटर होता है, इट कैन बी इथेनॉल, इट कैन बी ईथर एज वेल, लेकिन यूजुअली ज्यादातर तौर पे क्या होता है? वाटर होता है. फाइन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि टू कंडीशंस जो नेसेसरी होती हैं किसके लिए? इम्बिबिशन को कराने के लिए. वो दो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमें चाहिए होती हैं ताकि हम इम्बिबिशन करा सकें? दो कंडीशंस हैं. पहला, द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड द लिक्विड एम्बाइब्ड. यहाँ बच्चे बात आती है एड्सॉर्बेंट की. किसकी बात आ रही है? एड्सॉर्बेंट की बात आ रही है. सो व्हाट इज दिस एड्सॉर्बेंट नॉन एज? जिसकी मैंने आपसे बात करी कि वो कोलॉइड या सॉलिड सब्सटेंस जो किसी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज नोन एज एब्जॉर्बेंट. एब्जॉर्बेंट कौन है? ये जो कोलॉइड्स हैं, दीज आर नोन एज एब्जॉर्बेंट. तो इन कोलॉइड्स या इन एब्जॉर्बेंट और जिस लिक्विड को इम्बाइब करना है यानी कि पानी जिसको एब्जॉर्ब करना है, उनके बीच में वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए. ऐसा ना हो कि दोनों तरफ पानी की कंसंट्रेशन सेम हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो इम्बिबिशन का प्रोसेस नहीं होगा. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड between the surface of absorbent and the liquid imbibed. And what are the second factor?
affinity between the adsorbent, that is solid substance, and the imbibed liquid. यानी कि जो आपका एब्जॉर्बेंट है या जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है उसके बीच में और इम्बाइब्ड लिक्विड यानी कि पानी के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए, मतलब वो एक दूसरे के लिए सुटेबल होने चाहिए। वो एक जो आपका सॉलिड सब्सटेंस है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जिस लिक्विड को यूज किया जा रहा है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके टू एब्जॉर्ब इट, तो वो एफिनिटी इज रिक्वायर्ड। फाइन। अब क्लासिक एग्जांपल्स क्या हैं इम्बिबिशन के? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड्स एंड ड्राई वुड. The pressure that is produced by swelling of wood had been used by prehistoric man to split rocks and boulders. रॉक्स और बोल्डर्स को तोड़ने के लिए जो पहले एंशिएंट मैन थे उनके द्वारा इस वुड की स्वेलिंग के फिनोमिना को यूज किया जाता था क्योंकि उससे एक प्रेशर प्रोड्यूस होता था। दिस प्रोसेस यानी कि इम्बिबिशन, ये प्रोसेस और किस चीज में हेल्प करता है? एक तो हमने बात कर ली कि लकड़ी बारिश के मौसम में जो आप देखते हो लकड़ी फूल जाती है, उसका यही रीजन होता है, इम्बिबिशन। अदर देन दैट, जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड की अगर हम बात करें तो सीड का जर्मिनेशन भी किस चीज का की वजह से हो रहा है? इट इज रिजल्ट ऑफ इम्बिबिशन। ओके, नाउ व्हाट इज अनदर फिनोमिना? रप्चरिंग ऑफ सीड कोट, जो सीड कोट टूट जाता है। आपने ऐसी दालें देखी होंगी जो छिलके वाली होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मूंग की दाल होती है, छिलके वाले मूंग की दाल, जब आप उसको पानी में डाल देते हैं बहुत देर तक अगर आप भिगो के रखेंगे देन यू विल फाइंड कि उसका छिलका अलग हो गया है दाल से। दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ, रप्चरिंग ऑफ सीड कोट, यानी कि टूट जाना सीड कोट का। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन। एंड एमरजेंस ऑफ सीडलिंग्स, जब आप सीड को उगाते हैं प्लांट में, सॉरी मिट्टी में, प्लांट बनाने के लिए जब आप सीड उगाते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं कि वो उग के ऊपर आ जाता है, उसमें से छोटे छोटे लीव्स खिलने लगते हैं। दैट इज एमरजेंस ऑफ सीडलिंग इज ड्यू टू हाई इम्बिबिशन प्रेशर डेल्ट बाय सीड कर्नेल। सीड कर्नेल की वजह से जो हाई इम्बिबिशन प्रेशर प्रोड्यूस होता है उससे ही सीडलिंग्स उगते हैं, निकलते हैं। Among plant imbibents, phycocolloids are the best imbibents followed by proteins and cellulose. Now, what is the next thing? कि जो आपके प्लांट के इम्बिबेंट्स हैं, जिन इम्बिबेंट्स की, जिन सॉलिड्स की हम बात प्लांट्स में कर रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए तो जो आपके फाइकोकोलॉइड्स होते हैं दे आर द बेस्ट इम्बिबेंट्स फॉलोड बाय प्रोटीन्स एंड सेल्यूलोज। यानी कि आपके फाइकोकोलॉइड सबसे बेस्ट इम्बिबेंट होते हैं followed by proteins and cellulose. Okay, तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि आप एग्जाम्पल बताइए कि इम्बिबेंट्स कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं? फाइकोकोलॉइड्स आर इम्बिबेंट्स, प्रोटीन्स आर इम्बिबेंट्स एंड सेल्यूलोज इज इम्बिबेंट। लेकिन फाइकोकोलॉइड सबसे ज्यादा रहता है, उसके बाद आपका आता है प्रोटीन एंड उसके बाद आता है आपका सेल्यूलोज। सबसे अच्छा इम्बिबेंट फाइकोकोलॉइड होगा, उसके बाद प्रोटीन्स होंगे, उसके बाद सेल्यूलोज। नाउ so what I have noted is that imbibition without forming a solution, water का adsorption is known as imbibition. आपने यहाँ पे बच्चे ध्यान दी होगी कि हमने बात एब्जॉर्प्शन की थी। इन सम बुक्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज रिटन, बट एक्चुअल फिनोमिना ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होता है। दिस इज एक्चुअल फिनोमिना नोन एज एडजॉर्प्शन। इसका जो एक्चुअल फिनोमिना है वो एडजॉर्प्शन होती है। आपने इसके बारे में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अगर यहाँ पे बात है, if you are not clear about the process then next slide में I will let you know कि क्या डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। बट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहीं लिखा होता है, if you find any line in your NCERT then do put absorption, लेकिन this actual phenomena is adsorption not absorption. Without forming a solution, water adsorption. See, when I have made my notes I have written it as absorption because actual phenomena ये absorption ही होता है, तो absorption ही, sorry, adsorption ही होता है। Now without forming a solution, water adsorption is known as imbibition, where water sticks to surface
एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में मेन डिफरेंस यही है कि एब्जॉर्प्शन में पूरे के पूरे सेल के अंदर पानी चला जाएगा या सॉल्वेंट चला जाएगा, लेकिन एड्जॉर्प्शन के केस में वाटर जो है वो सरफेस पे स्टिक करके रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी चीज का सरफेस, यहाँ पे मैं बात करूं, अगर ये किसी चीज का सरफेस है और अगर मैं बात करूं पानी की, तो इस पे पानी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से स्टिक हो जाएगा इसके सरफेस पे, ऐसे, ना कि इससे पूरा चिपकेगा और इसके अंदर चला जाएगा, just like this. So this is adsorption. Imbibition is a special type of diffusion, ये हम बात कर चुके हैं. When water is absorbed by non-soluble colloids, non-soluble colloids होते हैं ये, यही रीजन है कि सॉल्यूशन नहीं बन पाता. Non-soluble colloids की अगर हम बात करें, imbibents की बात करें, तो what they are? Starch, protein and cellulose. And now talking about the imbibents, imbibents के example क्या क्या हैं? Phycocolloids, protein, starch and cellulose. जो phycocolloids होते हैं वो बहुत ज्यादा वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, दे एब्जॉर्ब मोर वाटर, वाइल जो सेल्यूलोज है दैट एब्जॉर्ब लेस वाटर. नाउ इम्बिबेट, 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 व्हाट इज दिस इम्बिबेट? दिस इज जनरली वाटर. एब्जॉर्ब जो होगा, जो एब्जॉर्ब होगा, दैट इज वाटर, दैट इज नोन एज इम्बिबेट. First phenomena in the life of a plant during water absorption is imbibition. प्लांट की लाइफ में अगर कोई पहला फिनोमिना होता है पानी एब्जॉर्ब करते हुए, देन दैट फिनोमिना इज नोन एज इम्बिबिशन. कैसे? सिडलिंग की बात की थी मैंने, एमरजेंस ऑफ सिडलिंग की, तो वो उसी वजह से तो हुआ था, बिकॉज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय द फिनोमिना ऑफ इम्बिबिशन. सो फर्स्ट फिनोमिना in the life of plant is known as imbibition. Because cell wall of root hair imbibe water, जो रूट हेयर की सेल वॉल है वो वाटर को इम्बाइब कर लेती है, तो इसीलिए पहला फिनोमिना तो वही होगा, क्योंकि रूट से वाटर एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद ही प्लांट ऊपर की तरफ एमर्ज करता है. इम्बिबिशन टेक्स प्लेस बाय एपो. पिछली बार हमने बात की थी सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट की. व्हेन वी विल मूव फर्दर तो हम एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक पाथवेज पढ़ेंगे, जिनमें से इम्बिबिशन जो है वो एपोप्लास्टिक पाथवे की हेल्प से होता है. इसकी डिटेल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे. फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इम्बिबिशन के केस में जो पाथवे है वाटर की एब्जॉर्प्शन का, दैट वाटर की एड्जॉर्प्शन का, देन दैट पाथवे इज नोन एज एपोप्लास्टिक पाथवे, या फिर नॉन लिविंग पाथवे भी इसे बोला जाता है. नाउ सिग्निफिकेंस क्या क्या है, कैसे हेल्प करता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इम्बिबिशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्बिबिशन, तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन रॉक्स. रॉक्स को तोड़ने में काम आता है. जहां हमने बात करी थी वाटर की, कि वाटर की जो वुड की, वुड की हमने बात की थी कि वुड में जो प्रेशर डेवलप होता है उसको यूज किया जाता था पहले टू ब्रेक डाउन रॉक्स एंड बोल्डर्स. तो सिग्निफिकेंस क्या हो गई? इट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन रॉक्स. देन द सेकंड वन इज सीड जर्मिनेशन. द थर्ड वन इज क्रैकिंग ऑफ रोड्स, पेमेंट्स एंड बिल्डिंग. आपने देखा ही है जब सड़क पे पानी भर जाता है बारिश के मौसम में, तो उसके बाद सड़कें टूट जाती हैं, पेमेंट्स टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स टूटने लगती हैं, गिर जाती हैं. ये भी इम्बिबिशन की वजह से हो रहा है. तो क्रैकिंग ऑफ रोड्स, पेमेंट्स एंड बिल्डिंग. एंड फोर्थ वन इज जैमिंग ऑफ वुडन डोर्स एंड विंडोज इन रेनी सीजन. वही जो मैंने आपको बताया था, दरवाजे कई बार बहुत मुश्किल से बंद होते हैं क्योंकि वो फूल जाते हैं बारिश के मौसम में. दैट इज जैमिंग ऑफ वुडन डोर्स एंड विंडोज इन रेनी सीजन. नाउ ये बात आ गई अपनी डीपीडी की, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसको हमने ऑस्मोटिक और वाटर पोटेंशियल की टर्म्स में डिफाइन किया था. लेकिन अगर यहाँ बात की जाए तो आईपी इज इम्बिबिशन प्रेशर एंड डीपीडी का फॉर्मूला बन जाता है डीपीडी इज इक्वल टू आईपी माइनस टीपी. इसको भी आप याद रखेंगे, कोरिलेट कर सकते हैं. आई एम गिविंग यू टाइम टिल द नेक्स्ट क्लास. इफ यू कैन कोरिलेट कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था और डीपीडी का फॉर्मूला यूज किया था, वहां से आप इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे कोरिलेट कर सकते हैं. Till next video, if someone will comment down how you can solve it, then it will be so good. Otherwise, in the next session, I will be telling you
कि हमने इस फिनोमिना को कैसे डिराइव करा। अभी के लिए आप याद रखेंगे कि dpd इज इक्वल टू ip माइनस टीपी। इसकी डेरिवेशन जिसको हु कैन फाइंड कि आप इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं, अभी बात बताते बताते ही आप लोगों को याद आ रहा होगा कि नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में हमने डीपीडी के बारे में बात की थी, जहां पे मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म्स में, वाटर पोटेंशियल्स की टर्म्स में आपको डीपीडी बताया था। तो वहां से आप इसको डिराइव करें कि हाउ यू कैन कम अप टू दिस इक्वेशन। नाउ इम्बिबिशन डिफ्यूजन भी होता है क्योंकि वाटर मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना जरूरी है और उनके बीच में एफिनिटी होना प्रीरिक्विजिट है। ये बात हम कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड दैट इज अबाउट ट्रांसपिरेशन। लॉस ऑफ उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि इम्बिबिशन किस तरीके से होता है। सी दिस इज द पिक्चर दैट हैव बीन टेकन फ्रॉम अ लैब, जहां पे सीड्स को दिखाया गया है कि सीड्स कैसे इम्बाइब करते हैं और वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसके बाद वो फूल जाते हैं। इम्बिबिशन आफ्टर 24 आवर्स दिखाई गई है। पहले ड्राई सीड्स थे, देखिए उनका लेवल उनका कैसा था, किस तरीके से नजर आ रहे थे, जो ड्राई सीड से कितने छोटे थे। उसके बाद जब पेट्रोलियम ईथर में इनको डाल दिया और इम्बिबिशन देखी इनकी आफ्टर 24 आवर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेट्रोलियम ईथर, तो ये फूल गए, बड़े हो गए, स्वेलिंग हो गई इनमें बहुत ज्यादा। उसके बाद 50% सुक्रोज सॉल्यूशन में इनको डाला तो ये नजर आए कि किस तरह से इनके अंदर स्वेलिंग हुई। और यहाँ पे फिर 25% कंसंट्रेशन कम कर दी सुक्रोज की, उस कंडीशन में कैसा हुआ, और जब डिस्टिल्ड वाटर में इनको डाला तो उस कंडीशन में कैसा हुआ। So this all is shown in this slide. Imbibition in seeds is shown after 24 hours in the presence of different type of liquids or imbibates. Now, transpiration. What is transpiration? The loss of water from the aerial parts of plant in the form of water vapors. Aerial parts of plant जो हैं, यानी कि हवा में जो exposed होते हैं plant के part, specifically leaf, उनसे जो वाटर का लॉस होता है दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। बट वो लॉस ऑफ वाटर जरूरी है कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए लॉस ऑफ वाटर? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू मेनली स्टोमेटा। और ज्यादातर ट्रांसपीरेशन किसकी हेल्प से होगी? स्टोमेटा की हेल्प से। और भी कुछ प्लांट पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जहां ट्रांसपिरेशन होती है, लेकिन मेजरली जो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होती है दैट इज ड्यू टू स्टोमेटा। स्टोमेटाज आर प्रेजेंट इन लीफ। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट आर स्टोमेटाज। डिटेलिंग में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि स्टोमेटा कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और उसके बेसिस पे ट्रांसपिरेशन कैसे होती है। Loss of pure water from the aerial parts of plant in the form of water vapor through mainly stomata is known as transpiration. Now, different types of transpiration. The first one is cuticular, जो कि cuticle से होगी। Cuticular linings होती हैं leaf और stem पे, तो उस क्यूटिकल की प्रेजेंस में, उस क्यूटिकल की हेल्प से जो ट्रांसपिरेशन होती है दैट इज नोन एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। 3 to 10% ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट का कंट्रीब्यूशन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन से होता है। Then we have lenticular transpiration that occurs through lenticels. Lenticels के बारे में आपने पढ़ा होगा when you have read about the anatomy of flowering plants. तो उन लेंटिसल्स की हेल्प से यहाँ पे अगर ट्रांसपिरेशन होगा देन दैट इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसल्स आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर आपको ध्यान आ रहा है, आपने पढ़ा है, तो काफी वुडी स्टेम्स और डाइकोट फ्लावर्स के अंदर एक पोरस टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं इन द पेरिडर्म, उसको बोलते हैं लेंटिसल्स। दे आर फाउंड ऑन एपिडर्मिस ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल स्टेम, पिटियोल, फ्रूट्स, इफ यू रिमेंबर। तो ये एक तरह से ओपनिंग होती हैं फ्रूट स्टेम्स या ट्यूबर्स पे,
जो कि लूजली कनेक्टेड सेल्स से भरी हुई होती हैं एंड वो पासेज ऑफ एयर को अलाउ करती हैं। तो उन लेंटिसल से जो ट्रांसपिरेशन होती है दैट इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। फाइन। नाउ सी द डायग्राम, कैसे वाटर निकल रहा है जो आपके लीव्स हैं उनके सेल्स के थ्रू या स्टोमेटास के थ्रू कैसे निकल रहा है, दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। नाउ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ऑफ कोर्स लीफ से होती है और 80 to 90% ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब कुछ फेमस साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट्स दी थी, दैट इज कर्टिस एंड स्टीवर्ट। जो कर्टिस थे उन्होंने क्या बोला, ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल। कहने का मतलब एविल समझते हैं, व्हाट इज एविल? एविल मींस बुराई। तो कर्टिस ने ये बोला कि जो ट्रांसपिरेशन है वो एक जरूरी बुराई है, बुरा तो कर रही है लेकिन जरूरी है प्लांट के लिए। और स्टीवार्ड ने क्या बोला, ट्रांसपिरेशन इज एन अनअवॉइडेबल एविल। बोला कि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, बच नहीं सकते ट्रांसपिरेशन से, ऐसी बुराई है। सो दिस इज द स्टेटमेंट बाय कर्टिस एंड स्टीवर्ड। अब क्यों ऐसा क्यों है? नेसेसरी इसलिए है क्योंकि प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन से कूलिंग इफेक्ट मिलता है, तो वो जरूरी है। और अवॉइड आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही स्टोमेटा एक्सपोज होंगे बाहर एयर के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे, ह्यूमिडिटीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन ट्रांसपिरेशन होगी जरूर। क्योंकि स्टोमेटा प्रेजेंस है तो ट्रांसपिरेशन भी होना निश्चित है। एडवांटेजेस क्या क्या हैं अगर हम बात करें अब कि नेसेसरी एविल है। नेसेसरी एविल की अगर हम बात करें तो मतलब उसके एडवांटेजेस की हम बात करेंगे तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अकर्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। जो मिनरल या वाटर एब्जॉर्ब होते हैं उसकी लिए जो फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ट्रांसपिरेशन। सेकेंड वन, कूलिंग इफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मटका होता है उसमें इवेपोरेशन होती है जिससे आपका पानी अंदर मटके में ठंडा रहता है, जस्ट लाइक दैट अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उनके सरफेस को जो कूलिंग इफेक्ट मिलता है वो ट्रांसपिरेशन से मिलता है। तो सॉरी, जो प्लांट के सरफेस से ट्रांसपिरेशन होती है उससे आपके एटमॉस्फेयर को कूलिंग इफेक्ट मिलता है, हमें ठंडक मिलती है, क्योंकि वो जो वाटर वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में कूलिंग इफेक्ट डालते हैं, निकल रहे हैं प्लांट से, और अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट किस पे डाल रहे हैं? एटमॉस्फेयर पे। तो कूलिंग इफेक्ट हो रहा है, ये इसकी एडवांटेजेस है। लेकिन प्लांट के लिए ये बुराई क्यों है और अनअवॉइडेबल है लेकिन नेसेसरी है, वो कैसे है? डिसएडवांटेजेस, इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या है? वाटर लॉस में कोज इंजरी टू द प्लांट्स। कभी कभी बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो जाता है जिसकी वजह से प्लांट्स को इंजरी हो जाएगी। बहुत ज्यादा पानी होना या बहुत ज्यादा पानी का लॉस होना और प्लांट में सूखा पड़ जाना, बोथ द थिंग्स विल कॉज इंजरी टू प्लांट। एंड अदर देन दैट, डिक्रीज प्रोडक्शन। ये जो बात हो रही है डिक्रीज प्रोडक्शन की, ये हो सकता है कि प्लांट के प्रोड्यूस को डिक्रीज कर दे बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन, एंड इवन डेथ भी हो सकती है प्लांट की, इवन प्लांट की डेथ भी हो सकती है। दिस यू मस्ट रिमेंबर कि it may cause this decreased production due to high transpiration effect may also cause death of plant या plant tissue की। Okay, so this is all about the transpiration. You must follow up what we all studied today and keep sharing, subscribing and following this channel, which is totally free of course. And you must revise all the processes we have done today. By our next class we will be almost done with all the important terms from transport in plants, and then we will be moving ahead to our higher topics, important topics, which will be about water movement through the large distances in plants. We will be studying about classifications of stomata that carries so many important questions from various entrance exams.
and then we will be discussing about the mechanisms of phloem transports, translocations, and then moving ahead to the next chapters of the plant physiology unit.